boys, to the new episode of our podcast 90 plus 3. How's the weather, first of all? Cold, chilly. It's -3 here, and I just said it's -1 in UK. So Okay. It's freezing. We had loads of snowfall today. You saw Burnley and Spurs got postponed actually. Burnley is just near Manchester, so the similar situation we have. Burnley had a lot of snow. Ooh, it's freezing outside. Okay. So it was an interesting week. Let's start the Big Six discussion with Arsenal. Let's start with them. They were playing first this week. They won 2-0 after the defeat against Liverpool. थोड़ा अच्छा था उनके लिए. But the only downside is I think Saka got off injured and he was playing brilliantly. yeah, So yeah, thoughts about Arsenal versus Newcastle 2-0 victory. yeah. Arsenal back to, like I said, the defeat against Liverpool wouldn't affect them. That's what happened. Arsenal back to winning comfortably, not comfortably. I mean the way that they win, stable होके normal clean sheet रख के आराम से goals मारते second half में. I expected more out of Newcastle, but it's too soon, I think, to expect more out of Eddie Howe. They were playing well actually. Like it has been a routine week. Everybody's winning. Like सब कुछ same. मतलब जो चलना चाहिए वैसा चल रहा है. वैसा ही 2-0 win. Simple. Not much to say about Arsenal Newcastle. Good goal by Saka, by the way. Yeah. Arsenal scored both the goals actually were good. Martinelli also scored a very good goal. Very tough. It was a very good goal. Yeah. So both the goals, Saka was a more like a team goal, and Martinelli was individual business. If I have to put it the correct way. And as Suyash mentioned, I think yes, Arsenal were back to. They knew that Liverpool will be a tough game, and losing them didn't hamper anything what they do and what they were doing. Exactly. Newcastle on the other hand are 13 games without a win. They may be the richest team in the Premier League and richest team in the Championship also going ahead. Yeah, there was this They game have that a the chance of guys getting go to relegated. championship with a suit and everything, with a budget of 2 million that they're paying in the championship next season. That might be the case. हो सकता है वो. Yeah, so that was Arsenal. I think they're still around there or thereabouts to 6 positions along with Spurs and you guys as well. Also there's West Ham and Wolves. So yeah, Arsenal be here. Let's see how it pans out. And okay, let's talk about the second match, which was Liverpool. Again, brilliant 4-0, killed it. Like since the first minute, they were Arnold with the assist, Thiago with another goal. So yeah, Liverpool के बारे में बताओ भाई. Suyash, बोलो. अरे I'm sorry, थोड़ा सा net अटका था, but yeah, what I'm saying is Liverpool का. I was talking to my friend yesterday. Hasenhüttl always tries something new to go against Klopp. Something new मतलब he always is brave और वो हमेशा कुछ खुल के खेलने की कोशिश करता है. He never tries to मतलब parking the bus कभी try नहीं करता वो. So in that मतलब उसके sense में हमेशा कुछ खुल के करने की कोशिश करता है. क्लॉप उसको हमेशा दे देता है. मतलब 9-0 दिया है पहले, इस बार 4-0 दिया है. कमेंटेटर भी बोल रहा था एंड ऑफ द गेम. एंड लिवरपूल का यूजुअल बहुत अच्छा कर रही है. वेरी नाइस. मतलब फ्लेयर कितना सही है वो लोग का. मतलब जाते हैं आगे, सिर्फ ऐसा लगता है हर अटैक पे गोल्स मारने वाले हैं यार. माने का भी डिसअलाउ हुआ था, मेरे को तो लगा कि वो भी गोल है ब्रो. तो लिवरपूल को रोकने का टफ है. एंड अर्लियर इन द सीजन तूने भी बोला था यश की look out for Liverpool, and I am looking out for Liverpool. It's just that I still get that feeling कि something's gonna happen in their season and it's gonna थोड़ा बहुत shaky होने वाला है. But as of right now, speaking about the performances, कोई कुछ नहीं बोल सकता यार. I mean, Liverpool is the team to beat right now. Even Chelsea are getting wins, but even those are not convincing enough for me. Liverpool, based on performances only, Liverpool को beat करना सबसे tough है. They are the team to beat right now in the Premier League. And हाँ बस. You would like to add anything? Liverpool यार +1 पहले तो. I think they just wake up and they are just we will murder the other team no matter whoever we play against. उठ के मेरे को मारने का ही है. And these 4 goals, no, Salah didn't score, Mane didn't score, both of them didn't score. Goals were coming from some other players, which is again I think which is more dangerous than it should be. Because पहले तो हम ये बोल सकते थे ना कि अगर साला गया और माने इंजर हुआ, then they explode. Now they're getting goals from otherwhere as well. Van Dijk also joined the party. I think
I have nothing. Liverpool are the team to beat. They are probably if I have to put it, and if nothing goes wrong, as Suyash mentioned, I think they'll be the title contenders or maybe the title champions if we go ahead. I thought. Champions, yeah, and they're showing signs of the Liverpool which won the Champions League and stuff, and I think they can win the league this season. I think for me, like personally, if you ask me, more than Chelsea, I would go for Liverpool. I don't know why. Maybe I can't even debate. To support. तेरे को मैं डिबेट भी नहीं कर सकता क्योंकि लिवरपूल फर्मिनियो भी इंजर्ड है तो जोटा इज स्टेपिंग इन हाउ ही स्कोरिंग 2 goals ऑलमोस्ट स्कोर्ड इन हैट्रिक वो चला भी गया था अंदर बट मतलब या ऑलमोस्ट इन हैट्रिक he could have scored easily. He could have easily scored and साला भाई टॉप फॉर्म में मतलब बैलन डोर अगर मतलब फेयर क्या पता फेयर ही होता होगा बट बैलन डोर अगर होना होता तो फिर ये सीजन अगर साला जैसा खेल रहा है ना नेक्स्ट ईयर अगर ऐसे नेक्स्ट सीजन होगा मेरे को ना लोगों को समझ ही नहीं रहा लोग अभी लोगों को नहीं समझता भुंडला वो पता है ना ब्रो क्या खिला यही सीजन अभी जो आने वाला है कल 5 साल को दे दो अरे क्या पता जॉर्जिनो ये भी था उसमें से जॉर्जिनो पूरा लास्ट ईयर पूरा अच्छा खेला था वो अगर लास्ट ईयर के बेसिस पे जाएगा तो ये साल के बेसिस पे भी पता है अरे अपन ने डिस्कस भी किया जॉर्जिनो बैलन डोर के लिए मतलब वो साथ में तेरे को बोलते भी शर्म आ रही मतलब उसका ओपिनियन इसलिए बिकॉज़ ट्रॉफी बेसिस कर दिया था अगर ट्रॉफी बेसिस पे जा रहे थे तो ट्रॉफी बेसिस पे अगर मतलब मैं वही बोल रहा हूँ मैं बता दो 4 या 5 कंटेंडर बदले सबके आर्गुमेंट कुछ ना कुछ आए हैं ठीक है चलो वो तो अलग बिकॉज़ मॉड्रिच को दे दिया था तो जॉर्जिनो को दे सकते हैं क्या पता छोड़ मूविंग ऑन moving on from that topic Liverpool are very scary to put it in a way they are and the first game got cancelled and we can talk about the chakma of the week let's move to that section City पहले कर लेते हैं City West Ham Oh yeah, I forgot City versus West Ham. So City versus West Ham, City cruise control में वापस cruise control में I think 94th minute पे, but the game was usual cruise control. थोड़ा सा drama सिर्फ end में I was watching the game I lost interest almost क्योंकि usual वही चल रहा है West Ham is trying but City is in control. End में थोड़ा drama हुआ जब लैंजिनी के पहले भी मतलब जब फर्नांडिनो ने अच्छा गोल मारा उसके बाद लैंजिनी ने जो एक वो किया स्क्रीमर्स ही मारता है यार मतलब भाई लैंजिनी हमेशा ट्रेडमार्क हो जाना चाहिए उसको लैंजिनी बीच में ओनली स्क्रीमर मारता है क्लीन शीट ले ली यार मेरा लपोर्ट कैंसिल हो कि क्लीन शीट ले ली यार लपोर्ट कैंसिल दोनों रखा था तूने मैं सिर्फ कैंसिल रखा था हमको बहुत है मेरा नसीब है ना मेरी टीम में प्लेयर है तो ऐसा होगा भाई आयुष का पहले ड्राफ्ट ले लेने का टीम हाँ तू नेक्स्ट वीक का टीम बता दे रहे स्क्रीनशॉट भेज दिया कर देंगे हम लोग तेरे को मैंने रुडिगर निकाल के डियाज डाला था लास्ट वीक तो रुडिगर गोल मारा डियाज खेला ही नहीं नहीं तू स्क्रीनशॉट भेज उसके एकदम एग्जैक्ट अपोजिट टीम बनाऊंगा मैं और अगर मैं अच्छा किया विक तो पैसा भी दूंगा सोचना इससे कमा रहे हैं I mean City doing what they do best they passed their way through West Ham and West Ham were trying to get into the game but they simply couldn't break down City and Ayush anything we want to talk about City versus West Ham bro the football of City is like वो चादर उड़ा देते ना किसी को ऐसे suffocate करने के लिए they just put the blanket over them and they suffocate the opposition City's football is like that you can't do anything उसको बस उसने कपड़े पहना दिए और आजू बाजू से मार रहे थे and I feel that is why it's just tough to break them unless and until you play a football like Liverpool play or maybe not even Chelsea like Liverpool play or maybe how Ole played counter attacking or how maybe Ole played उसके पास अटैक करने को तुरंत निकल जाते but it's tough to break their football down I feel City's football and Moyes का भी I've seen थोड़ा सा decline in performance not really results क्योंकि results West Ham से फिर भी expected it to just hang in around that 5th 6th 7th spot but performance में देखा है मैंने West Ham थोड़ा decline किया Antonio भी थोड़ा drop किया performance में I think थोड़ा सा fatigue हुआ होगा करेक्ट और आंसर लग रहा था मतलब they were scared to attack मतलब अटैक कर सकते वो वेरी कंटेंट के भाई ज्यादा वो कमिट नहीं करते क्योंकि वो एक रहता ही है थॉट कि कभी भी थोड़ा भी आउट ऑफ प्लेस हुआ तो सिटी है भाई कुछ भी कहीं से भी कुछ ही हो सकता है तो एग्जैक्टली वो था सिटी 2-1 सिटी आल्सो विनिंग now we can there were two other dull matches 0-0 Wolves का Norwich का and Brighton versus Leeds also
so there's not much to talk about. But yeah, Brighton also हमने जब से we can like give a small mention. जब से we praise them. They are on a downfall. They've been constantly either losing or drawing matches. Yeah. So yeah, they'll also have to stabilize a bit. And Leeds, the team which we loved last season, they are almost hanging around the bottom. They're like 16th, if I'm not wrong. Bro, but it is not even. I'm not even trying to explain what's happening with Leeds. It's a simple fatigue का thing कि next season अभी players वो same energy से भाग नहीं पा रहे हैं. तो मतलब और लीड्स में पता नहीं इतना वो होगा भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब वो डाइट एंड न्यूट्रिशन पे और ध्यान देने की कोशिश करें एंड मतलब प्लेयर्स को ऐसा उनकी बॉडी में इतना ऐसा खाना वाना डाले कि वो लोग वापस भाग पाए. बट इट इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू हैपन इंस्टेंटली. क्लॉप ने हम श्योर कुछ किया होगा यार ऐसा, क्योंकि लिवरपूल इज द वे दे आर प्रेसिंग राइट नाउ. लीड्स इज लाइक वो एक बहुत टॉप का गाना आता है ना, अपन पहले दिन में 100 बार सुन देते हैं फिर उसके बाद बोर हो जाते हैं. So I think I second Suyash on that. They just went for the heavy metal run and then now they are bored out of it and something like that. And release कर दिए होंगे, Spotify release कर दिया होगा वहाँ पे. और बिएल्सा stubborn भी है bro, उसको मालूम पड़ेगा फटीग का प्रॉब्लम है, तो बिएल्सा stubborn भी है. फटीग का प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बोला कि फटीग मतलब बेसिक बिएल्सा से मानने बोला फटीग क्या होता है, तुम लोग भागो मतलब, और क्या लास्ट सीजन क्या इस सीजन. If you go to see, Klopp would also do that only. He would do that, but he improved, bro. मतलब उसने adapt किया. Third season I think उसका फिर भी decline नहीं बोल सकते, but Liverpool इतना शायद भागा नहीं था. But ये season उसने फिर से he's brought them back to the same level when they won the Champions League. So he's adapted very well. It's great to see. Yeah, so that was Brighton versus Leeds, and let's move on now to the Chakma of the week. Which is Chelsea versus United. Okay, this match you guys didn't lose today, which is a good thing. But this is the Chakma of the week, since I think even you guys were not expecting, or you didn't have that expectations that you would be able to get a point out of it or win the match. So in that sense, it's a Chakma. So Ayush, first question is to you. How do you think the team performed in the first half? Like how the formation that he set out, the players that because I think Suyash has been crying like he's been dying to see a team without Ronaldo since like 2-3 weeks, and he finally got it. So I'll obviously ask him that question. But how do you feel the team was in the first half? How did he set up? And see, like you started, we weren't expected to win. So probably that was the mindset when he started with the team, because he wanted to, let's say, hold on to the lead or stop from conceding the goal. That's why it made sense to start with two wingers who will be right at the defending end and run on whenever you get the option, and Matic out the base, and Fred and McTominay both providing the legs that you guys always talk about. So it made sense to try this formation out because we were not trying to concede a goal and probably it made sense to change the formation a bit. Suyash, Ronaldo less United. मतलब ये थोड़ा सा क्लिकबेट ही है, क्योंकि रोनाल्डो लेस यूनाइटेड अभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो कैरिक है ब्रो, और मतलब कैरिक ने जैसे विलारियल के सामने सेटअप किया था, मतलब ही न्यू व्हाट यूनाइटेड नीडेड टू डू. मतलब एक पॉइंट चाहिए था तो फिर 2 पॉइंट्स चाहिए था, तो 3 पॉइंट्स चाहिए था, तो फिर कैरिक ने सिंपल डोंट कंसीड अ गोल, जो बेसिकली आर्टेटा ने आके किया था ना स्टार्टिंग मैच में. कैरिक के पास 2 गेम है तो उसने बस सेटअप किया हुआ है नॉट टू कंसीड, एंड देन इफ वी कैन स्कोर, तो एंड में उसने इधर भी सेकंड हाफ में ट्राई, मतलब आई एम श्योर टीम टॉप देके वो लोग पंप किया होगा, तो सेकंड हाफ में भी केम आउट स्ट्रॉन्गर. तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू मतलब 2 गेम्स 3 गेम में तो स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है. एंड आई मीन बॉल्स तो फिर भी है रोनाल्डो को ड्रॉप करने में, and I'm not judging it as Ronaldo-less performance right now. Rangnick आएगा उसके बाद, based on how he'll judge the team, how he'll perform. तब जब रोनाल्डो ड्रॉप होगा तो मैं एक्साइट होगा, तब I'll actually see कि टीम कैसे वापस परफॉर्म करेगी. अभी तो मैं जज नहीं कर रहा, थोड़ा क्लिकबेट ही लग रहा है, तो इंस्टेंट ऐसे एक ही गेम में देखने के लिए. और बाकी तो ज्यादा कुछ किया नहीं हम लोगों ने. काउंटर पे सेकंड हाफ में जब बाहर निकले थे तो मतलब when we were stronger सेकंड हाफ में, तो रैशफोर्ड एंड सैंचो showed good energy. इससे सेकंड हाफ अच्छा गोल आया भी, और रोनाल्डो आने के बाद भी ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है. मतलब वो तो सेकंड गोल जो कंसीडर किया वो तो पेनल्टी था, वैन बिसावा का एरर था इंडिविजुअल, एंड वो भी ज्यादा कुछ एरर नहीं था. ही वाज जस्ट ट्राइंग टू किक द बॉल को, और क्या करेंगे वो तो आदमी. So yeah, I'm not judging. No, but I think Thiago Silva was very smart to put his body in front of the defender. The contact was coming. He was smart, and हम थोड़ा अनलकी थे यार. मतलब वो क्लियर करने गया था, उसका पैर डाल दिया, उसका पैर आ गया तो पेनल्टी हो गया. I think सुरेश ने भी किया था, but lucky वहां थे कि जॉर्जिनो ने गोल गिफ्ट कर दिया. So
it evens out a bit. तो मैंने ना अभी एक अपने ग्रुप पे मैंने वो भी लिखा था दूसरे वाले में, जॉर्जिनियो वन वन-बिसाका वन, दैट वाज द आउटकम ऑफ द मैच. Yeah, नहीं, and apart from that, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है. अगर आज लुकाकू खेला होता वर्नर के जगह तो चेल्सी जीत जाती. Did you feel? No? मुझे तो लगा भाई लुकाकू होता तो 1-1 नहीं होता, क्योंकि वर्नर ने मतलब वर्नर बेकार होगा बट लुकाकू उस पोजीशन में पहुंचता ही नहीं. अरे लुकाकू के लिए टेलर मेड था. कितने जगह थे जहाँ स्ट्राइकर का मूवमेंट चाहिए था या स्ट्राइकर का एक प्रेजेंस चाहिए था, और ये वर्नर तो मतलब पता ही नहीं क्या करता है. देख वर्नर से अग्री करता हूँ, but the comparison is wrong. I think वर्नर is shit. Comparison नहीं, मतलब he was playing where Lukaku would have played if he had been fit, and पता नहीं मतलब शायद but we all know that Werner is shit. ये भी चल जाता. I felt very Werner is shit. नहीं ब्रो, बट मुझे मेरा ओपिनियन ये है कि मतलब यूनाइटेड वाज सेट अप टू लाइक पार्क द बस नहीं बोलूंगा, बट नॉट टू कंसीड अ गोल. एंड और वो जो मैनेजर छोड़ने के बाद थोड़ा सा गिल्ट फील होता है ना, तो सारे प्लेयर्स में जो गिल्ट से पंप अप होते हैं ना, वो पंप अप ना अभी इसमें आया हुआ है कि कंसीड नहीं करना, एंड दे आर डूइंग इट वेल. नहीं करना है. विलारियल के अगेंस्ट नहीं किया कंसीड, इसके अगेंस्ट भी नहीं किया. थोड़ा सा लक भी बोल सकता है, एक दो लोग 8 शॉट्स थे 8 अटेम्प्ट्स. थोड़ा कहीं ना कहीं ओले को भी दर्द हो रहा है भाई. नहीं मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं डिफेंड कर रहे थे. अभी 5-5 जन आ रहे पीछे, सब मिडफील्डर भी पीछे. मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे ओले को. ब्रो एक चीज बहुत अच्छी थी आज के मैच में, व्हिच आई एम मिसिंग आउट. वी डिड नॉट हैव मैग्वायर इन अ लाइनअप. आई थिंक आज वी प्लेड, our defense was excellent. He was serving a हाँ तो बैन ही था ना, अच्छा हुआ नहीं था. मतलब आई डोंट देख यश, मैं बोलूंगा कि अभी काफी प्लेयर्स का ना थोड़ा मतलब क्लीन स्लेट तो उन लोगों को मिलने वाला है, बट फैंस को क्लीन स्लेट देने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो रिसेंसी बायस होता है ना कि उन्होंने देखा होता है कितना गंदा खेला है. सबने ऑब्वियसली बहुत गंदा खेला है सारे प्लेयर्स ने, बट सब लोग आउट ऑफ फॉर्म है, टीम आउट ऑफ फॉर्म है. तो आई एम जस्ट सेइंग कि किसी को अभी तक जज नहीं करने को. और मैकफ्रेड तो भाई स्टार बनने वाला रैंकिंग के अंडर. And let's just Fred, I think apart from that his chip which he tried, Mendy error, वो brainfield moment, ये लोग स्टार्स बनने वाले. और इनफैक्ट सारे वो प्लेयर्स जिनको अभी गालियां पड़ रही है ना, मतलब इवन वैन बिसाका को बहुत गालियां पड़ी. आई एम नॉट इवन श्योर वैन बिसाका स्टार्ट करेगा, क्योंकि डालो कैन बी अ बेटर ऑप्शन अगर रैंगनिक सच में खिलाता है फुल बैक्स को अच्छा, एंड शॉ के बदले टेलेस कुड बी एन मोर अट्रैक्टिव ऑप्शन. तो इट इज ऑल अप इन द एयर एज ऑफ नाउ, बट ऑल द प्लेयर्स डिजर्व अ क्लीन स्लेट. अपने यूनाइटेड के प्लेयर्स है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि आने दो, बंदे को देखने दो क्या है, उसको असेस करने दो, जो कर रहा है. और वो रोनाल्डो को लेके अच्छा खिलवा. हाँ बोलना. हाँ बोल कंटिन्यू. वो रोनाल्डो को लेके अच्छा खिलवा दे तो फिर विन विन सिचुएशन है. बस मेरा प्रेडिक्शन है, आयुष का अलग है, मेरा अलग है, कि मेरे को लगता है कि रोनाल्डो की बिना ही टीम अच्छी खेलेगी और रैंकिंग को रियलाइज कर लेगा और वो उसको बिठाएगा. आयुष का प्रेडिक्शन है कि बट ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज सिंस ही इज ओनली कमिंग फॉर 6 months and he will any which ways be scrutinized because it's Manchester United. Even if he wants to do that, he'll be under pressure from not only the board, and he'll have a certain expectation set even before he steps in. That they say you can't maybe I don't know, I'm just throwing a thought here. I feel this team can't score without Ronaldo. मुझे तो toothless लगते हैं ये लोग कभी-कभी. I think maybe that's because of low on confidence. I don't know. But I don't see them scoring a goal without Ronaldo. That is the problem which I feel with this team. बट पता है ब्रो सीन क्या है, रोनाल्डो के बिना मार नहीं पाता, क्योंकि रोनाल्डो ने अपना प्रेजेंस अभी सेट ऐसा कर दिया है कि वो आके ही गोल मरवाता है. मतलब बेसिकली आके खड़ा रहेगा बीच में, एक पास आएगा रोनाल्डो ही मारेगा और सिर्फ वही मारता है. और तू सही बोल रहा है, अगर ऐसा टीम्स खिलाए ना हम लोग लगातार 3 वीक भी, तो रोनाल्डो के बिना नहीं मार पाएंगे. आदत ही अभी 15 गेम के रन में आदत ही ऐसी, रोनाल्डो ही एक सेंट्रल स्ट्राइकर है जिसको पास कर रहे हैं, रोनाल्डो गोल मार रहा है. तो इन अ वे यू आर सेइंग इट राइट, बट रोनाल्डो के बिना ब्रो हम लोग बहुत फ्लूइड खेलेंगे. मैं देख See, the thing is you can't be starstruck with a player in a team, and if you want to play player stars, they don't want to pass to him, but रोनाल्डो का प्रेजेंस ऐसा है ना ब्रो, उसका प्रेजेंस ऐसा है कि if he's making those runs consistently and demanding the ball, जैसे तू कैसे बताऊं मैं तेरे को, टर्फ पे खेलने जाएगा तो एक प्लेयर है जो हमेशा भाग के तुझसे बॉल ही मांग रहा है, तो तू भी टेंडेंसी ऐसी होती है कि तू पास करने लग जाएगा उसको, मतलब उसके थ्रू होने लगेगी चीजें. बट रोनाल्डो का ये जब अच्छी बात है, that's where the manager's sense, game sense comes in, no? That's why you prepare a team to play against. That's why you prepare your team to play against such teams. तो रोनाल्डो भाग रहा है तो उसको इन गेम प्लेयर का सेंस भी तो डेवलप होगा ना, कि if Ronaldo is there, then other players should also step up to that scoring level. Agreed, हो गया तो परफेक्ट है. बट मुझे बस इतना लगता है कि रोनाल्डो का ईगो इतना बड़ा है और इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा पर्सनालिटी है ना, कि उसके बिना फिर मतलब जब वो टीम में रहेगा ना तो प्लेयर्स विल नेचुरली लुक टू पास टू हिम. और पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि रोनाल्डो के साथ हम लोग कर पाएंगे फ्लूइडली.
I could be but, wrong, and I wish I would be wrong because मैं hater नहीं रोनाल्डो का, मैं तो भाई fan था, चालू किया मैंने मैच उसको देखने से, तो I wish I could be wrong, but मुझे लगता है रैंगनिक उसको and also आज जैसे यूज किया आप, this can be a very good option because in which ways it's not that he wants the ball 90 minutes, he just wants a chance or two in the box पर वो or accept somewhere करेगा near क्या? it. I would love it, but तू बता वो accept करे? नहीं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ. Against big teams like Chelsea where we don't get spaces, it makes sense to play Ronaldo in a 30-minute role or something like that. But against small team, he'll bully them off to and win the match. ये भी है, fair enough. ये भी sporadically यूज किया ना तो मेरे को चलेगा, मैनेजर को भी चलेगा, यूनाइटेड को भी चलेगा, बट रोनाल्डो को नहीं चल सकता वो चीज. वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सब पॉसिबिलिटीज देख के सोच के बोल रहा हूँ कि मतलब तुम अगर मैं यस रोनाल्डो, इफ आई गो एंड स्पीक टू यू एंड से कि देख ब्रो, एज नहीं बोलूंगा मैं, चलो बोलूंगा कि द टीम नीड्स यू टू प्ले अ स्पोरेडिक रोल, मतलब तू कभी कभी बीच बीच में लाएंगे तो फिर सम गेम्स तो स्टार्ट भी करे, ऐसा नहीं मतलब ये नहीं कि सिर्फ सब्स ला रहे. वो नहीं एग्री करेगा ना, बेसिकली फीफा में कॉन्ट्रैक्ट में आएगा कि यू विल बी स्पोरेडिक प्लेयर, तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता ना रोनाल्डो ब्रो. मैं भी रोनाल्डो एग्जैक्टली व्हाई आई वाज पॉइंटिंग आउट दैट रैंगनिक को भी वो आएगा ही, मतलब वो आएगा कॉल के यू कांट बेंच हिम. अच्छा वैसा वो पॉलिटिक्स प्रेशर भी हो सकता है. हाँ, कि he will have to, he is the face of the club, you have to build around it. तो अब एक ये है इसमें अच्छा बात कि रैंगनिक is a coach who can do it. वो प्रॉमिस है उसमें, he has the brains, he has the style to implement, and maybe if, but वही है कि जितना टाइम लगेगा ये स्टाइल इम्प्लीमेंट करने के लिए, कैसे तुम लोग खेल रहे हो और जैसे तुम्हारे प्लेयर्स है, उतना टाइम उसको मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं. वो एक है क्योंकि लिए वो इजी नहीं है वो स्टाइल खेलना, अडेप्ट करना, वो उतना सिंक में आना, उतना इंटेंसिटी लगाना. लिवरपूल को भी 2-3 साल लग गए बिल्ड होने, काफी मतलब हर जगह नहीं ब्रो, इंजरीज भी बहुत होने. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट. बहुत अच्छा पॉइंट है. इंजरीज भी मैंने एक वीडियो भी देखा था और बोला कि मतलब अगर हाई इंटेंसिटी अचानक से स्टार्ट करने वाला है तो a lot of players are going to go off injured. Lot of सबसे पहले लूक शॉ फर्स्ट प्लेयर इंजर्ड को तो मैंने इसलिए वो पोस्ट डाला था कि आई थिंक ही हैड 2020 में he had commented that Manchester United needs a new left back. Luke Shaw is there, but I don't think he's at the level to play for Manchester United. This is a big statement, and a lot of players, I think he has said for Messi and Ronaldo as well, कि they are too old and expensive. I wouldn't have them in a team. वो उसने ऐसे नहीं बोला कि मैं खिलाऊंगा नहीं, but एक है, he has his plans, he has his thoughts, he has his set game, a way of playing. So let's see how he manages and inculcates everything. And youngsters भी bro काफी ऊपर आने वाले, because if players go injured, and if नहीं है bro, that is something I'm certain of कि इंजर होने वाले players will go off injured, क्योंकि रैंगनिक I don't think वो patiently रखने वाला है. हेवी मेटल सच में है तो हेवी मेटल तरीके से इंप्लीमेंट भी करेगा कि आते ही बोलेगा कि प्रेस करना है, और वो प्रेस करने के चक्कर में बहुत प्लेयर्स इंजर्ड जाने वाले. So I can see a lot of youth coming up, a lot of people you have not heard of coming up, a lot of young kids coming up, which is good. And again, to stress on my point, I don't hate Ronaldo. Ronaldo के साथ अगर हम लोगों ने कर लिया तो बेस्ट है भाई, विन-विन सिचुएशन. मैं रोनाल्डो फैन, दुनिया रोनाल्डो फैन, रोनाल्डो के साथ जीत रहे. But I just feel उसको मैनेज करना is like a problem right now. Not for us, but for the manager, कि मतलब उसको लेके कैसे वो स्टाइल इंप्लीमेंट करे, उसके सिवाय कैसे करे वो स्टाइल इंप्लीमेंट, कितने जल्दी करे. और जहां तक कि वो पॉलिटिक्स की बात बोली तूने कि कॉल आ गया ऐसे कि रोनाल्डो को लेके तुम्हें करना है, वो तो फिर बर्बाद है. मतलब वो प्रेशर रहता है पॉलिटिक्स, मतलब नॉट नेसेसरीली दैट प्रेशर रहता है. यू कांट बेंच योर स्टार प्लेयर, वैसा वी हैव बॉट हिम टू प्रेशर देख रहता है पॉलिटिक्स में. इसलिए बोल रहा हूँ, तूने मुझे एक चीज ऐसी आंखें खोली मेरी कि देख, अगर ग्लेजर्स फोन करके बोल रहे कि हम लोग का स्टार साइनिंग है, शर्ट से बिचवा रहे, तो उसको खिला, ऐसा वैसा होगा जैसे मूवीज में दिखाते हैं, हिंदी मूवीज में. तो नहीं होगा, बट रैंगनिक ऐसे प्रेशर नहीं लेगा ब्रो, उतना तो ब्रेव रहेगा अगर वो सच में. बट वो एक ना एक तरीके से वो मतलब कोई ना, मतलब मुझे लगता आएगा ही थोड़ा. आयुष इतना हंस रहा है तो बता क्या चल गया था दिमाग में? मैं सिर्फ हंस रहा, I'm just enjoying the conversation. I will not comment on it because my thought process is very different from you all. So we want different thought processes. We don't want podcast में आयुष तू बोलना thought process ही चाहिए. The thing is Ronaldo, what I've seen from the matches, what I've seen from now, he didn't used to do this before. So now he's leaving, he's running back, he's pressing, he started pressing also. When people label him as lazy, I don't feel he's lazy at all. And he's the person who scores the goals for you even after defending and everything, doing everything. So I think Rangnick will make him play according to his style, his formation, and there'll be a huge success with Ronaldo inclusive.
चल इंशाल्लाह, ये तो अच्छी बात ही बोली इसने, ऐसे कुछ नेगेटिव थोड़ी बोला है, तो अच्छी बात ही बोली। उसके साथ खेल लिया, जीत लिया तो बेस्ट ही है ना भाई, सब लोग जीत गए, हार्मनी है, पीस एंड हार्मनी। And the thing which I may agree with you guys is rotation is necessary because the style of football that he will play, you will get burnout. So rotation may be necessary for players like Ronaldo and Cavani, but he will play Ronaldo regularly. कवानी तो भाई क्या हीरा बन सकता है, बट बेचारे का एज यार, बस बायोलॉजिकल एज तो But इंजरी भी हो गई Rangnick उसको, से टेंडन इंजर मतलब हो गया उसका। वही तो यार, अभी हो जाता है Rangnick- एक टाइम के। अबे मेसी के बारे में ऐसे ही नहीं बोल रहे लोग हैं, एक टाइम का बायोलॉजिकल एज हो जाता है 34-35 के बाद, बॉडी डिक्लाइन होने लगती है। ज़्लाटान अलग लेवल पे, और इसलिए वो लेसर टीम्स में गया भी थोड़ा, लेसर मतलब ऐसी टीम्स थोड़े रोनाल्डो प्रोजेक्ट। ब्रो 37। अबे बट वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए छोड़, वही तो मैं बोल रहा हूँ, रोनाल्डो खेल रहा है टॉप लेवल पे, बट यार उसके इंडिविजुअल गोल्स तो हमेशा अचीव करेगा आयुष, अगर वो 40 तक खेले तो भी, बट इट्स अबाउट हाउ इज अफेक्टिंग द टीम। चैंपियंस लीग में कितने गोल है पता है तुझे? अबे ये स्टैट्स मुझे मत बता, मुझे पता है मेरे को कितने, वो मैड्रिड से जाने के बाद स्टैट्स ही तो बना रहा है ब्रो, गोल्स ही तो बना रहा है, नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ही स्टिल शुड बी कंसीडर्ड एज एट पार विद मेसी। मेसी टेक्निकली बेटर होगा, बट एट पार विद मेसी गोट। हाँ तो वो तो है ही। मैं तुझे सिर्फ बता रहा हूँ कि यूनाइटेड में जो प्रॉब्लम है वो मुझे क्लियर दिख रही है इस वक्त पे, और मैंने उसको यूवेंटस में भी जज नहीं किया, बिकॉज आई एम स्टिल रोनाल्डो फैन, मतलब मैं सपोर्टर हूँ उसका। व्हाट ही डज इज, मतलब वो एग्जांपल है पूरी दुनिया में, कि अगर तुम खुद पे बिलीव करो तो कहाँ पहुंच सकते हो तुम लोग लाइफ में। इट्स जस्ट दैट ये टीम जो बिल्ड कर रही थी, और ये टीम को जो जरूरत है इस वक्त पे फ्लूइड और यंगस्टर्स को ऊपर लाने की, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है इस चीज को, वो मैं तुझे बोल सकता हूँ खाली। So I think that's a thing of the past now, because Ole is not there. But now since Rangnick is coming in and he has, fresh approach, he has a fresh, मतलब रोनाल्डो के साथ day one से he can, build around Sancho, Rashford, whoever he wants to play, how he wants to play with the midfield and pressing and everything. So I think it can be an advantage and it can be a blessing in disguise as well. कि मतलब अभी first day से पूरा with Ronaldo, how he's coaching, because ओले के साथ भी कैसा हुआ था, he had come like after the season had started, right? And then वो उसको किया था. So this can be an advantage also and can work in your way also, as Ayush is saying. So वो तो हो ही सकता है obviously. अगर वो वीडियोस देख रहा है सच में ट्रेनिंग वेनिंग का, बिकॉज देयर हैज बीन न्यूज़ की ट्विटर पे आ रहा है कि ही हैज बीन वाचिंग फुटेज ऑफ हाउ ही ट्रेन। तो अगर वो सच में वो सब देख रहा है तो व्हाई नॉट, मतलब he could devise a plan of using Ronaldo and still getting the best out of him. I just hope Ronaldo agrees to a role what he offers, and भाई अच्छा हो गया तो अच्छा ही हो गया, बेस्ट है फिर यूनाइटेड के सपोर्टर्स हैं हम लोग थोड़े। लास्ट एकदम लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आयुष रैंगनिक से कैसे, क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द कोच? See, I'm not expecting them to win any trophy this season. Probably they can try for FA Cup or Champions League, because I think they, as per Twitter, they have he has a bonus also involved in it. If he wins a cup or if he qualifies for the Champions League, he'll get a bonus. So I think that should be the expectation. That's it. You can't ask him to go around and win the Premier League now. I think it's too much to ask for when you go ahead and try to win the Premier League now at this stage. But we can still try for an FA Cup or probably go as far ahead in the Champions League. That's quite. And post 6 months, yeah. Yeah, you can finish. Then I'll ask my question. So मैं बोल रहा था post 6 months you all would want Pochettino to take over, right? मतलब तुम लोग, मतलब you all are मैं Pochettino pro Pochettino ना? पहले तो आयुष का मैं ऐड ऑन कर दूं कि सही बोला उसने, मतलब वो काफी कॉशियस एक्सपेक्टेशन रख रहा है। मेरे को तो बोलेगा कि अबे सब कुछ जीतना है वो, बट आई वुड स्टिल से कि चल वैसे एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए यार मैनेजर्स, यूनाइटेड मैनेजर्स है तो चल अच्छा 7th पे अभी तो कम से कम 3rd 2nd फिनिश तो होनी चाहिए यूनाइटेड की, अभी तक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। टॉपर तो वो तो एक एक्सपेक्टेशन है कि टॉप 4 लाना है बस, ये तो और मतलब बाय डिफॉल्ट है। मेरे को एक्सपेक्टेशन सच बोलूं तो मुझे प्ले स्टाइल में एक्सपेक्टेशन है कि अगर सच में एक टैक्टिकल, तुम लोग जितना जो प्रे कर रहे थे लोग की टैक्टिकल टीम चाहिए कि तुम लोग को चाहिए सेट वे पे खेलने के लिए, अभी मुझे अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो है कि तू सच में दिखा कि टैक्टिकली कितना अच्छा कर सकता है, एंड जस्ट शोइंग ग्लिम्पसेस ऑफ व्हाट द टीम कुड अचीव मे बी इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर सच में प्रेसिंग गेम चालू कर रहे हैं इंप्लीमेंट करना, तो वील स्टार्ट सीइंग ग्लिम्पसेस कि कौन कितना अच्छा खेल रहा है। बट देन वो 6 महीने करेगा, वो चला जाएगा 2 साल नहीं वही, और भाई हाँ एग्जैक्टली जो तूने बोला कि नेक्स्ट मैनेजर कौन चाहिए, आई वुड होप कि 6 months वो करे एंड थिंग्स मतलब कुछ तो हो, भाई यूनिवर्स काम करे, रैंगनिक स्टेज लॉन्गर, और रैंगनिक डज व्हाट ही डिड इन लाइप्जिग, उसने उधर भी 6 महीने का रोल लिया था एंड देन ही ब्रॉट इन नागल्समैन टू सक्सीड हिम, मतलब उसी जगह उसको पता है कि मतलब नागल्समैन उसकी तरह खिलाता है तो उसने उसको लिया वो डिसाइपल की तरह। तो रैंगनिक अगर वैसे ही स्टाइल का मैनेजर कोई ढूंढ ले, मे बी जेसी मार्श और समबडी, मतलब ऐसे कोई जर्मन मैनेजर ढूंढ ले, तो जर्मन मतलब जरूरी नहीं है भाई ऐसे प्रेसिंग वाला मैनेजर, और उसको 6 months के बाद रखवा दे तो व्हाई नॉट, मतलब नॉट इवन 10 ग्रूम करे,
या हाँ ग्रूम करके मेंटर कर सके. हाँ कि उसने 6 महीने Yeah. फाउंडेशन ले किया है, वो एक कंसल्टेंसी रोल भी उसने इसलिए मांगा होगा कि नेक्स्ट सक्सेसर भी वही चुनने वाला होगा, इसीलिए उसने कंसल्टेंसी रोल मांगा है कि मैं 6 महीना सेटअप करूंगा फंडामेंटल्स, उसके बाद जो नया मेरा सक्सेसर आएगा उसको कंटिन्यू करना है चीज को. अब टेन हाग और पोचेटिनो करेंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं, और अगर उससे बेटर कोई मिल जाता है, कोई यंग प्रॉमिसिंग मैनेजर या तो फिर कोई ऐसा मैनेजर जो खिला रहा है प्रेसिंग, तो व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोस. बट पॉच नहीं, पॉच अब मतलब मैं बोल रहा हूँ कि रैंगनिक के आने के बाद पॉच नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ. Nice. I was actually going to add the same thing which Suyash mentioned. Now, if Ragnick we are getting, so Poch won't match his style. I don't think because they are different managers. I think Ten Hag will more suit what Ragnick will try to implement. But again, it's 6 months down the lane. You don't know what happened, what will happen. So whatever it is, I think इतना futuristic सोचने की जरूरत ही नहीं है. पहले मैं सोचता था, अभी नहीं सोचूंगा. Whatever happens after the 6 months, then it's up to the board or Ragnick to decide who will suit. But I think it won't be Poch now. Even if the board is pro Poch, SAF is pro Poch, Twitter is pro Poch, but I don't think it will suit now if we start playing football the Ragnick way. It could go two ways. यश कि ये सच में two ways मतलब मेरे सेंस में तो मुझे लग रहा है एक्सचेंज आने वाला है कि 6 months he'll do successful होगा वो in implementing his style and then he's going to choose a successor. But the दूसरा वे ये है कि he could fail terribly and मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट ही हटा दिया, 6 months कंसल्टेंसी रोल सब निकाल दिया and they're bringing in Poch अलग से ही next. I hope वो नहीं हो, ये फर्स्ट वाला जो मैंने बोला वही हो सकता है वो वहाँ पे पीएसजी में फेल होके फिर भाई, क्योंकि यूनाइटेड का जो किस्मत चल रहा है लाइफ में मतलब जैसे लोग जा रहे आ रहे हैं, हो सकता है यूनाइटेड के साथ तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पूरा can't rule out anything. going through that. Yeah. So yeah, that was Chelsea versus Manchester United. I think Chelsea they were not up to power and they could have won with Lukaku. I still maintain the statement. Werner now vice striker. But yeah, a good win, a good point for you. But I think the point is more valuable for City and Liverpool since Chelsea. I think now they're only 1 point at the top. City be 29, Liverpool be 29, and Chelsea is 30. So yeah, things are hotting up. And अभी Liverpool, Chelsea, and when these guys face each other, तब I think काफी मजा आने वाला है. Another noticeable match which we can talk about was Leicester versus Watford, and 4-2 win. Vardy with a brace, Maddison with a goal. So yeah, very quickly Leicester versus Watford. Guess who removed Vardy from their FPL team? चलो मतलब खरीदना है अपने को यश, खरीदना है अभी क्या अभी डालूंगा बस अभी डालूंगा. I removed Vardy last week. Last week kept Kane blanked, Vardy blanked. Kane didn't play today. लोग बोल रहे थे कि Watford was the game के वो जब मारने वाले हैं, but मेरे पास तो था ही नहीं बजट and everything, so I couldn't. Anyways, मेरे तो ऑप्शन ही नहीं था, but आज पहले की नहीं पता था ये सब. Secret bro, spoiling the party. मैं यूनाइटेड है, मैं चेल्सी का पार्टी स्पॉइल किया, मैं सबका पार्टी स्पॉइल करेगा. अरे नहीं, वॉटफोर्ड का भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रेनियरी आया है, ही इज ट्राइंग टू प्ले लाइक ही यूज्ड टू प्ले, और इतना वॉटफोर्ड वैसा मतलब इट्स नॉट जस्ट अ टीम दैट यू गो एंड they scored 2 goals. हां, दे स्कोर्ड 2 goals. यूनाइटेड को भी उन्होंने 4-1 हराया है. मतलब वॉटफोर्ड इज स्टिल मतलब दे आर ट्राइंग टू अटैक. इट्स नॉट जस्ट कि वो लोग का पोजीशन के हिसाब से वो लोग वैसे हो रहा है, प्रैग्मेटिक हो जा रहे हैं. ऐसा नहीं कि पोजीशन होल्ड करना है भाई, जस्ट स्क्रेपिंग ऑफ रेलेगेशन. रेनियरी स्टिल बीइंग ब्रेव एंड ट्राइंग टू इंप्लीमेंट हिज स्टाइल एंड नॉट जस्ट सेइंग कि रेलेगेशन से बचते खाली गाइस ये सीजन. ऐसा नहीं चल रहा. तो इट्स गुड टू सी. इवन नॉर्विच, बट डीन स्मिथ आई डोंट नो, उसने ब्रेक नहीं लिया. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्टली ब्रेक लेने की जरूरत नहीं भाई, अपन सैक का नया मार एक आइटम ने छोड़ा, नया आइटम पे जाएंगे सीधा. तो ऐसा बट ऐसा सही मैं बोल रहा था कि ऐसा सही नहीं है क्योंकि नॉर्विच फिर भी कुछ इंप्रेस मतलब कुछ अलग कर नहीं रहा है. दे आर जस्ट होल्डिंग ऑन फॉर नाउ. लेट्स सी क्या हो. Bro, Dean Smith is like bitches, they come, they go, Saturday to Sunday, Monday to Sunday, yo. That is if he succeeds at Norwich, then I start believing in that too. No, you don't believe. नहीं रे, मजाक कर रहा हूँ. It is not solving the problem ever. ठीक है, वो एक अलग, that's a different topic of discussion for another podcast, let's say. तो ठीक है, Leicester versus Watford was a good match. Also अभी next stage जो Champions League आने वाला है उसमें United PSG one of the teams which we can face is United. तो काफी मजा आएगा if they beaten हो गई तो.
भाई काफी सबसे मजा ज्यादा आएगा। एक्साइटेड तो मैं चैंपियंस लीग तो चल आ ही रहा है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं टू सी रैंकिंग इन हिज फर्स्ट गेम। आई थिंक नॉट मी, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड में भी, सारे फुटबॉल फैंस होंगे कि भाई का वो रैंकिंग कैसे खेलने वाला है। लेट्स सी कैसे जाए, मतलब Also, very big news. Just 2 days, which we all came to know, was one of Portugal or Italy is going to miss the World Cup. This is going to Yeah. be big, massive. It's massive. या चलो उसमें अभी ऐसे अभी नाउ सिंस आई जस्ट मैंने छेड़ ही दिया टॉपिक, तो मैं पूछ ही लेता हूँ, तुमको क्या लगता है हु विल मिस आउट, बड़े भैया या इटली यूरोपियन चैंपियन? यूरोपियन चैंपियंस, प्योरली बिकॉज ऑफ वो होता है ना, चेस जीतने के बाद you're most vulnerable when you win, मतलब when you're most vulnerable when you score a goal, वैसा सीन। तो अब ये लोग आयुष जब ये जीते मतलब काफी आई थिंक फुट ऑफ द फेदर। अभी ये जो सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो बोल बोल। सिचुएशन में है ना, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड हैड जॉर्जिनो काफी पेनल्टीज मिस की थी, तो पता है ना वो सर? हाँ बस Italy will miss out, बोल। I think. Coming clutch, Ronaldo always comes in clutch. अरे ब्रो वही ट्रैप है, वही क्लच में आते आते। चल ठीक है, रैप अप करते हैं। ठीक है, सो यू बोथ आर गोइंग फॉर इटली, देन आई हैव टू गो फॉर पोर्चुगल। मेरे को थोड़ा चाहिए मसाला, तुम लोग अभी नहीं पाए से इटली तो मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा रखते हैं, वरना we'll have nothing to talk about. So yeah, I think final words to end the video. ये का काफी शॉर्ट एंड स्वीट था, जिसके लिए कुछ ज्यादा कंटेंट कुछ नहीं अच्छा मसालेदार खासा, हुआ अरे नहीं मस्त काफी। परफेक्ट टाइम में अपन, 1.5 मिनट बचे जूम को भी, अच्छा खासा कवर किया अपन ने, अच्छा चिल टॉक। I just Yes. would like to say, if you like the video, please hit like, subscribe, share with a friend or maybe whoever you want to share it with. Opinions, comments कुछ भी है तो कमेंट में डालो, हम लोग भी रिप्लाई करेंगे। हम लोग को भी जानना है तुम लोग क्या सोचते हो, मैं सच में रोनाल्डो के बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ, डिलूजनल हूँ कि आयुष सही है कि क्या है, सब लिख दो जो भी है कमेंट पे ना, भावना लिख दो, हम लोग वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। बाकी हाँ, तुम लोग को अभी भी बात करना है हम लोग से तो कमेंट्स में लिखो, हम तुम लोग को बुला लेंगे पॉडकास्ट में, अपन बात करते हैं साथ में, देखते हैं क्या चल रहा है फुटबॉल के बारे में, लाइफ के बारे में। एंड हाँ बस +1 +1 short and sweet. सिंपल। तू एक काम कर देगा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट से, तो +1 बोला तू बोली मत, क्या बोलने की जरूरत ही क्या होती है, बस तो क्यों बोलना ही क्यों होता है वो नेक्स्ट टाइम तू इसको क्यों देना सीधा, बस आयुष तू बोलता +1 है। ही है यार, मतलब there's nothing, so he perfectly summed up. If you guys want us to talk, if you think that he's going crazy against Ronaldo, please support me, I need support here. so then tell +1 there also. No, not there. ठीक है चलो, नेक्स्ट वीक guys. चलो गाइस, सी यू, मजे करो, Bye. चलो बाय।